Anyways, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. There's someone who's come up just server. Okay. Now today we talk about the flex box. So what you do firstly here is we have to do a lot of things today. Okay. One of them is the flex box we talk about. But before a few things, I would like to start because Majid has the first day today. So let's start up the things like this. This is the day 33 folder. What I do here is I create two folders here. One is for the, I call it an index.html, create index.html. Then you have one more folder called style.css. In index.html, you will do what? You will say shift and exclamation mark and put up the enter, and it will give you this thing. It will give you what? The title, the body, the boilerplate is given, and we call it Flexbox, maybe Flexbox Learning. So it's Flexbox Learning. So we are actually trying to learn the Flexbox. Okay. So what have we learned so far? We have learned a lot of things, right? So anyone tell me what we have learned so far? Yes, about the positions and about this, so that we come to the point that why we are learning the Flexbox. Anybody tell me? Yes, start speaking. Make this interactive class. We have learned about the float. We have learned about the float. We have learned about the positions also, right? Position also, yeah. Display. Yes. Semantic tags. No, I'm talking about the layouts and those things. Yes, I'm not talking about the everything what we have learned. We have learned about the positions. We have learned about the display. Tell me about the display. How many displays we have learned about? We have basically three displays: Oh, block, inline, and inline block. What about the default one? There's one. There absolutely. is one more, none. That's the default. Which is default? Block. Block is default. Yeah. So if I do here like this, I say this is the actually for the Majid, but I want you guys to tell me. If I say first thing, what I do in a style is I need to first link my style, right? I need to first link the index file. So what I do, I will do here, I will say link colon css, the shortcut for linking the style. So it's telling to link the style sheet href style.css. So this style.css is linked with the index.html here. Now in this style.css I say star, and we what we call the normalize, we basically normalize our page because it has default padding. Okay, and I want to make it 0, and if there is any kind of like margin which is default, there are default margins for many elements, and I want to make them 0 so that they won't mess up with my design. And for the important thing I do is called box sizing. Yes. What is that? Border box. We do the border box, right? Anyone tell me what is the difference between what is that border box? Yes. What do you mean by border box? It takes width of the It takes the width of viewport screen. it takes the width of viewport screen. That's not that thing. Any other guys who I have explained it, maybe I think in the first couple of days or something, in the first week. You may have forgotten, no problem. Let me little bit. Let us do little thing about it. We understand it properly. So by today, after you will not forget it. Okay. Let me create a couple of divs, and I say in short, if I want to create a div with a class, I say dot. Maybe I say box1. Understand it properly, don't forget it then. Control Z I will say, and I say dot box1, so it will create me the box with the div with the class box. But if I say multiply by 2, it will create me couple of boxes now. Okay, I call the second box box2, and the first box is box1. Okay, maybe here in this div I am creating an h1 tag, and I say bro, this is gonna be the 300, maybe this is gonna be the 300 pixel इसकी width है और इसकी length है, ठीक है. And I copy this thing, command C, and
come on, we don't forget, this is the basics. Now we don't need to forget these things. These are very important things and we can't forget these things. They're like ABCs. Okay, now I got a couple of boxes here, box 1 and box 2, but if I give it a go, there will be nothing shown up because this box has no color, no border and all, only the H1s are showing up. We should remember all the time, where is this thing, we should remember all the time that, where is that pen gone? Yeah, here it is. That if you have any element, right, this element has actually a content area. It has a content area. This is the content area, the main content area, and then this stuff is inside the content and the boundary. This is a boundary, right? boundary. This area is called the padding. This area is what called a padding. So we have padding, we have border, and we have the content area. If there is no padding, like we said, padding 0, margin 0, in the padding 0, what we did is my content area is hugging with the border. There is no gap in between. Like this gap, there is no gap in between, right? So every element has its what? The padding and the margins. The margin goes outside that border. If you say margin, what's the margin? Box model तो हमने किया था ना. This is my element and any space between one element and the second element, and this thing is the margin. Okay, and the content, actual content inside this guy, and there is some kind of a padding inside. This is the padding and the content stays here. If there is 0 padding, then this boundary and the border will touch each other. That's what we did when we said here that margin is 0 and padding is 0. Understand this border box clearly today. Actually, I thought I will explain for the margin, but I think everybody has forgot about it. So let me style first these box 1 and box 2 to understand these things. Let us style up these box 1 and box 2. So what should I give to the box 1 and box 2? Let me call both of the boxes are called, they are both the divs. So I will say all the divs, right? For all the divs, what I do is I will make width 300 pixel, like I promised it in my H1. That is a 300 pixel. Okay, width is 300 pixel, height is also 300 pixel. Let me make it height and width 300 pixel, both guys. Okay, and I say margin bottom because if I don't add up the margin, then they will be, like I say, background color firstly. Background color, maybe I will give it give some color. Maybe I give it some blue color, maybe blue color. Okay, come on, let's save it. Now when I see the boxes, I got there are some issues. Why is it taking too much of 300 pixel? Is there some, I have wrong something, Dave? Width 300 pixel, height 300 pixel. Is it 300 pixel too much? I don't think so. Background color is blue. Okay, there is some issue here. I have done something wrong here. This is div 1 and this is the box 2 class, box 1 class, box 2 class, and inside of the H1, and then I got this thing. Okay, ठीक. Now in the style, what I'm telling is, firstly I'm making margin of this 0 and I'm saying border box. Don't say it border box right now, just delete the border box right now. Let me let me put up firstly what? Border. I just put the border. I just want to see the border of these guys. Border, say 2 pixels. Okay, solid and red. Okay, let me say border 2 pixels, solid and red. Command S to save it. Control S for you guys to save it. Now I got 1, 2, and I don't know why is it 3. It's all the time doing some I have to actually format this thing. There is some VS Code, some issues because I created only 2 borders, na? Command S. I created only 2 guys here, right? How many divs I create? 1 div and second div. You create with me. There is some issue with my VS Code. Last time also it was having some issue. But it creates some more things here. Like I say 1 and second. Actually, these are the 2 boxes. Okay. Let me put up some margin here. But it gives me the third box. I don't know why. So I put up some margin, margin, from all sides. I want margin, say for example 30 pixels. Okay, I'm getting 30% margin from all sides so that it will get some space. I don't know where the third box comes from, right? It is last time also we had some issue.
It's with my actually with my VS Code also some problem. I will actually reinstall it. But these are the two boxes. Forget about this box. It has come out automatically without my code. You must have seen these two boxes, right? I got this box and this box. This H1, this is my H1, and this is the actual the content. What I was talking about. I will just come in a moment. I will explain what I was saying. Is if there is an H1, and I want to give H1 some background color, maybe red. I'm giving some H1 the background color red. Now this background color red, this is the H1 having the background color red. So this is the H1, right? Now this is the H1, this is also the H1. Now I will take up this div. Now see, I will take the box one, which is having the class box one. So if I have to target this box in my style, what shall I do? In my style, I should say dot box one, because it was the class name. So I have to use the dot, right? You should tell me, na? So if there is an H1, if I want to target this box, the box one, because it is a class name box one. So what should I do? I have to use dot box one. In the dot box one, I add up some padding. Okay, of say 20 pixels. Okay, I'm adding up some padding, and I'm also adding up some border. But right now, let me add the padding and see what happened. When I add up the padding, now you see this box grown bigger, क्योंकि पहले दोनों 300 पिक्सल्स थे. ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मैं जो बता रहा था. ये देखो, इसमें पैडिंग कुछ नहीं थी, तो इसलिए जो मेरा H1 है, जो कंटेंट है, इट इज़ हगिंग टू द बाउंड्री. बट नाउ आप देखो गैप आ गई ऊपर से, साइड से, बाएं से, इट इज़ द पैडिंग ना. बट यू सी जो इस बॉक्स का जो साइज़ है वो बढ़ गया है ना. सो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, एंड आई विल सी हियर, एंड आई ट्राई टू इंस्पेक्ट दिस गाय. ओके, नाउ लुक एट इट केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग. हमारा कौन सा है ये? बॉक्स वन है ना. बॉडी के अंदर, बॉडी खोलेंगे, उधर बॉक्स वन, ये वाला बंदा है. नाउ लुक एट द बॉक्स मॉडल ऑफ इट. 300 पिक्सल इंटरनल कंटेंट है. ये पैडिंग इसकी 20 है, जो ग्रीन में दिख रहा है अभी. यहाँ पर भी देखो, इस बॉक्स में भी ग्रीन आ गया ना. 300 जो H1 है उसके बाहर जो ग्रीन आ गया, इट इज़ एक्चुअली पैडिंग. अगर आप दूसरा वाला बंदा देखो कि बॉक्स 2, उसमें पैडिंग कुछ है नहीं, है ना. जो बॉक्स 2 है उसमें कुछ पैडिंग नहीं है. इसमें अगर आप देखोगे, किसमें? बॉक्स 1 में, इसमें आपको 20 पिक्सल्स की पैडिंग आ गई, है ना. और बॉर्डर भी इसके ऊपर है, जो कि हमें बाहर लगाया हमने बॉर्डर, इसको, ये डिव को लगाया हमने, वो बाहर है. लेकिन फ़िलहाल जो साइज़ है वो एक तो 300 अपना, जो 300 साइज़ मैंने रखा था, विड्थ या हाइट मैंने रखी थी. फिलहाल विड्थ की बात करेंगे. 300 साइज़ जो मैंने रखा था उसको 20 यहाँ से, 20 यहाँ से, यानी कि 40 ऐड करें. दैट इज़ 340 इसकी. अब जो इसकी विड्थ आ गई, 340 हो गई. अब अगर मैं इसमें बॉर्डर भी ऐड करूँगा, क्या करूँगा? ऐड बॉर्डर. से फॉर एग्जांपल मैं मोटा बॉर्डर रखता हूँ 20 पिक्सल्स वाला, 20 पिक्सल्स का सॉलिड रेड, या कोई और कलर देंगे, फॉर एग्जांपल ब्लैक ही देता हूँ मैं. ओके, अब आप देखें, जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब देखो बॉर्डर भी ब्लैक आ गया. अब देखो और बड़ा हो गया ये, अब ये और बड़ा हो गया. देखो यहाँ पे देखें आप बॉक्स मॉडल में, इसके अपना साइज़ 300 है. वो इंटरनल कंटेंट है, जो मैं समझा रहा था आपको इस पे वन नोट पे, जो मैंने आपको समझाया कि आपको इंटरनल कंटेंट होता है, फिर पैडिंग होती है. अभी समझा रहा था ना मैं, ये इंटरनल कंटेंट होता है और बाहर से पैडिंग होती है, और फिर बॉर्डर होता है. लेकिन ये सारा ऐड हो रहा है. आप देखो ये वाला बॉक्स ग्रो हो गया ना, बड़ा हो गया. हालांकि 300 पिक्सल था खाली पहले, लेकिन अब जाके ये आपको बड़ा बन गया. इट हैज़ ग्रोन बिगर, एज यू कुड सी हियर, क्योंकि आपको एक तो अपना 300 और ऊपर से 20 + 20, ये क्या थी? 20 क्या थी? पैडिंग. और बॉर्डर इधर से 20 और इधर से 20, यानी कि 40 + 40 120 इसको ऐड हो गया. यानी कि कुल मिला के 420 इसका साइज़ हो गया. जो इसका साइज़ है वो 420 हो गया. इसमें एक तो अपना कंटेंट एरिया जो ब्लू है, जो ब्लू एरिया हमें दिख रहा है, जो 300 मैंने रखा था, जो पहले हमने इसमें साइज़ रखा था यहाँ पे, जो कि हमने साइज़ रखा था VS कोड के अंदर. VS कोड को मैक्सिमाइज़ करो. जो आपका साइज़ हमने विड्थ या हाइट जो मैंने 300 रखी थी, वो अपनी वही है, विड्थ वही है, लेकिन 20 पैडिंग, यहाँ से भी 20 पैडिंग, और फिर 20 बॉर्डर, और यहाँ से भी 20 बॉर्डर, एज यू कुड सी इन दिस ना
जो ब्राउन एरिया है, ब्राउन जो दिख रहा है। सो कुल मिला के कितना बन गए ये 300 प्लस 20 इंटू 4 दैट इज़ 120, यानी कि 420 कुल है। लेकिन अगर मैं इसको बॉक्स साइजिंग क्या बनाऊंगा, अब मैं करूँगा, मैं कहूँगा कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू डू इट, अदरवाइज ये हमारा ग्रो करेगा ना चीज़। हम बॉर्डर दे रहे हैं, हम पैडिंग दे रहे हैं, वो ग्रो हो रही है, वो हमारा एक्चुअल साइज से जो हमारा प्रॉमिस किया था साइज 300 वो उससे बढ़ के हो रही है। लेकिन जो ही मैंने इसको किया कि बॉर्डर साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है, नाउ यू सी इसमें बॉर्डर भी है, इसमें पैडिंग भी है, लेकिन साइज़ वही 300 है ना। नाउ यू सी इसने क्या किया, कंटेंट एरिया 220 ही अब रखा, क्योंकि टोटल इसको लेना है 300, जो मैंने प्रॉमिस किया 300 वो टोटल वही रहेगा 300। उसी 300 में ये बॉर्डर भी काटेगा, उसी 300 में ये पैडिंग भी काटेगा। अब आप देखो, इसने पैडिंग दी 20 की, इसने बॉर्डर दिया 20 का इधर साइड, इस साइड भी इसमें 20 और 20 की आ गया, इसमें हाइट के अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से भी 20 है, नीचे से भी 20 है पैडिंग, और फिर बॉर्डर जो ब्राउन में दिख रहा है आपको, बर्गली ब्राउन जो है, ओके बर्नवुड टाइप की कलर जो है, इसमें 20 नीचे ऊपर 20। अब हाइट के भी छोड़ा, फिलहाल विड्थ की बात करेंगे, चाहे हाइट हो विड्थ हो, दोनों में काम करेगा। अब देखो इसमें इसने पैडिंग दी 20 की, यहाँ से भी, और बॉर्डर दिया 20 यहाँ से भी, यानी कि टोटल 120 इसने किया बॉर्डर एंड पैडिंग ऐड। लेकिन इसने कंटेंट एरिया को कम किया, क्योंकि इसको कुल साइज 300 ही रखना है। और आप देखो इसमें जो आप दिख I रहे think हो, it's 80, not 1. हाँ जी, It's 80. 80, it's 80, not 120. कौन 80, सा 300 minus 80. 80 सॉरी 300 यस, minus 80. yes it's 80 whatever it is, okay yeah you're right, it's 80 only, 20 plus 20 is 40 plus 40 is 80, whatever it is, but I am saying my point which I want to convey is that इसने जो बॉर्डर और जो पैडिंग काटा वो किस में से काटा, टोटल साइज में से, क्योंकि टोटल साइज हालांकि कंटेंट एरिया इसने कम किया अब, है ना, ये जो ब्लू में दिख रहा है इसने 220 ही देखो किया कंटेंट एरिया, तो 80 इसने काटा है उसका। लेकिन अगर आपका बॉर्डर बॉक्स आप नहीं रख रहे हो तो फिर क्या होगा, अब आया समझ में सबको, ये तो परसों ही मैंने समझाया था, पहले ही दिन ही समझाया था, लेकिन समहाउ यू हैव फॉरगॉट इट। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, Yes, sir. क्या फ़र्क है अब, ये बताएगी मुझे जो बता रही थी वो लड़की, हाँ रासिब, स्पीक अप, यस सर। व्हाट इज़ नाउ बॉर्डर बॉक्स सर साइजिंग, मैं एक्चुअली यही बता रही थी। हाँ फिर से बोलो अब। माजिद वाइज योर मैं कैमरा ऑफ, यही इमरान, बता रही थी। Imran, Farhan, Mufaiz, Farooq, Adnan, Riaz. I told you it is very important to keep cameras on. If you have to be in a class, your camera should be on. It is prerequisite. हाँ जी माजिद, आपने समझ आया आपको बॉर्डर बॉक्स? नहीं, आपने म्यूट रखा हुआ है, आपका म्यूट है। अरे यार हमें बॉर्डर बॉक्स से ही टाइम चला जाएगा यार, फ्लेक्स बॉक्स वही रहेगा। माजिद साहब कोथास घ्यायचं कोई कैमरा त्या वो छात आहे मेरे पास, अरे वो तो भाग ही गया लगता है। एनीवेज, नाउ लेट्स गो टू द अनदर थिंग, होपफुली यू गॉट इट, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, पहले index.html में इसको छोड़ ही देंगे, मैं इसमें न्यू फाइल बनाऊंगा एंड आई विल कॉल इट flex.html, ठीक है। और इसको जो है ना फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ स्टाइल देंगे इसको सेम ही। स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं है, एक मिनट, स्क्रीन कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन भी शेयर कर लूँगा। बॉर्डर बॉक्स सबको समझ आया अब? हाँ जी ज़हूर, आपको समझ आया बॉर्डर बॉक्स अब? सर Yes, sir. अभी भी नहीं आया समझ? यस सर आ गया। अच्छा जी, इसमें लिंक करेंगे हम सेम CSS style.css ऐड करेंगे, ठीक है ना, हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँगा, फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे जो ना कमेंट आउट करूँगा, या मैं यहाँ स्टाइल सेकंड फाइल बनाऊँगा न्यू, क्योंकि मैं ये भेजूँगा फिर आपको, तो आपको ये मुझे अब मेरे को टाइम मिलेगा भेजने का चीज़ें, होपफुली, अगर घर की हालत रहे, कैसे कि अब छुट्टी होगी ना। style2.css, हाँ
तो इसके अंदर हम इसको यहाँ पे फ्लेक्स को हम स्टाइल 2 ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। और स्टाइल 2 में पहले ही हम स्टार पकड़ेंगे, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स। व्हाट शैल आई डू? पैडिंग 0 पिक्सल है ना, डोंट राइट पिक्सल विद द 0, एंड मार्जिन 0। Zero. उसके बाद हाँ, Box sizing. box sizing. Never forget it. Put all the time box sizing as border box. This is what we do all the time. And then we also have the font size and all. Maybe I have font size जो मैं default रखना चाहता हूँ, font size for example and all that. I can do that also. ठीक है? If you want a font size, अगर पगाच ऐसे को करित पाते ना Google fonts and all, we can use the Google fonts to have those things. ना? You understand Google fonts से हम लोड कर सकते हैं अपने fonts, और वो fonts यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है। या font size बेसिक में रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल फॉर एग्जांपल, या font बुकुस font था, and font family कोस था, and all those things. And here I can target HTML, or I can target body, for example. What do you want to, if I say body and HTML, what would you like to give the HTML or body something? What will you give? Anyone tell me, what will you give? What will you like to give to the HTML or to the body tag? If I say, the first thing will be The background. margin. Background, background. You know, one is background color, one is background. We give background mainly what's called linear gradient. What is linear gradient? It's kind of a picture now. You know, linear gradient हमने किया था एक बार शायद। linear gradient किया था हमने? नहीं sir. linear gradient नहीं किया था? linear gradient is very important to, you know, we usually create ना buttons and all, we put up linear gradients. मेरा ख्याल हमने किया था, और शायद पता नहीं एक्सप्लेन किया मैंने नहीं। इसमें हमारे पास पहली चीज़ जो होता है कि आप कहाँ से शुरू करोगे, ठीक है, और कहाँ ख़त्म, वो पहला चीज़ होता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कहूँगा टू राइट, मतलब राइट साइड आप चले जाओ, फिर देन आई कैन से कामा, देन आई कैन से द कलर्स, कि कौन से कलर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा रेड, देन उसके बाद मैं कहूँगा ब्लू फॉर एग्जाम्पल, बट देयर इज़ नॉट नेसेसरी क्रिएट ओनली वन two colors only, you can have many colors, right? If I say control command S, save it, and I go to the flex and just go live and see what's happening here. Not working right now. Style 2 Shanawat, style 2 mein command S. So I am saying in the HTML background is linear gradient to right, red and blue. So why is it not giving color? ईशा यू है कि नहीं काश? नो फ्लैक्स बुक्स ये वाला है, पता नहीं हम किसको रन कर रहे हैं। फ्लैक्स को हमें रन करना है ना, ये वाला रन करना है। कमांड एस, सेव इट, 1 सेकेंड। इसमें VS कोड मुझे करना पड़ेगा चेंज, बिकॉज इट्स नॉट गिविंग प्रॉपरली। फ्लैक्स का HTML है लेकिन कलर नहीं ले रहा। अच्छा, लिंक नहीं किया यहाँ पे, लिंक तो किया है ना? Yes sir, link किया। style2.css, style2 सेम तो है। मेरा VS कोड में थोड़ा सा इशू आ रहा है कुछ। एंड आई एम सेइंग HTML एंड बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट आप दे दो, और इसमें ये दे दो, फिर क्या मसला है? इसको ये क्यों नहीं ले रहे हैं? और बॉडी दोनों को इंटरेक्ट करो। ये आपको चल रहा है? नहीं सर। चलेगा क्यों नहीं? आई एम सेइंग पैडिंग इज़ 0 एंड बॉक्स बॉर्डर बॉक्स है, फॉन्ट साइज 20 है। ओके, फिलहाल पहले हम देखते हैं कि चल रहा है कि लिंक हुआ कि नहीं है। ठीक है, हम बॉडी में एक चीज़ काम करेंगे, यहाँ पे हम H1 टैग लगाएंगे, उसमें कहेंगे कि भाई साहब कि मैं सीख रहा हूँ फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, अब H1 को हम टारगेट करेंगे, यहाँ पे H1 को टारगेट करेंगे, फिर कहेंगे हम कि भाई साहब इसका कलर जो है ना वो रेड कर दो आप। ठीक है, now it's working perfectly fine. Now I am saying that I have an HTML tag, okay, और HTML tag को मैं कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड, एक तो क्या बैकग्राउंड कलर, अगर बैकग्राउंड कलर हम देंगे फॉर एग्जांपल एक्वा। ठीक है, तो इसने दिया एक्वा है ना, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर मेरे को नहीं चाहिए, बल्कि मेरे को चाहिए
ग्राउंड, यानी कि मुझे कोई इमेज डालनी है इसमें। अब इमेज नहीं मैं डालूँ, मैं चाहता हूँ लीनियर ग्रेडियंट मेरे को चाहिए। लीनियर ग्रेडियंट में पहला चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको टू राइट, टू राइट। ओके, उसके बाद मैं कलर दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कलर मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल रेड। ओके, एंड दूसरा कलर जो मेरे को चाहिए वो है ब्लू। ओके, अब कमांड एस सेव इट, या इट्स गिविंग, पता नहीं पहले क्या हो रहा था। नाउ इट्स गोइंग सी टू राइट, यानी कि राइट से शुरू करो आप। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लीनियर ग्रेडियंट। अपने राइट से शुरू किया, फिर आप चलते गए और उसके बाद आपको ब्लू कलर आ गया। अब यू कुड से कि भाई राइट आपको 70% तक मेरे को रेड चाहिए, तो 70% तक रेड आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा। ओके, और आई कुड हैव यूज इट हियर यू नो सम डिफरेंट कलर्स लाइक RGBA colors, RGBA, where I want to start from the maybe from red ही मुझे चाहिए। so 255.0, 0, ओके, एंड comma से बिल्कुल सटल चाहिए 0.1 मेरे को चाहिए। टू में नहीं करना comma, देन आई से अगेन RGBA। ओके, मुझे रेड ही चाहिए 255 is the maximum. We have understood the colors, right? Then I have Yes. the 0, comma 0. What is the last one? This is R, this is G, this is B. What is the last one? Opacity. Opacity, huh? Opacity. Alpha value. And I'm saying alpha value is 0.8, यानी कि 0.1 बिल्कुल हल्का ट्रांसपेरेंट रेड से बिल्कुल थोड़ा सा सॉलिड रेड तक जाना चाहिए। नाउ हल्के रेड से थोड़ा सा जा रहा है ये इसमें, है ना। सो आई कैन इंक्रीज दिस हियर, आई विल से कि भाई साहब 0.3 से कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा ही ये आ रहा है, ये आ रहा है चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ लीनियर ग्रेडियंट। हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट हमारे पास होता है, ठीक है। इसमें कॉनिक ग्रेडियंट भी होता है हमारे पास, और इसमें हम यहाँ पे डिग्रीज भी बोल सकते हैं कि भाई साहब मेरे को 90 डिग्रीज में चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री से शुरू करें आप कलर डालना, फिर वहाँ से चालू करें। मैं कह सकता हूँ 180 डिग्री से कलर चालू करो, ठीक है। सो इट विल डू लाइक दिस, इट विल मेक ए डिफरेंट पैटर्न। ओके, सिमिलरली आई कुड हैव व्हाट इज कॉल्ड एज अ रेडियल ग्रेडियंट। आई कैन हैव हियर द रेडियल ग्रेडियंट। अगर मैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट के बदले अगर मैं इसको बंद ही करूँगा कमांड दिस, देन आई विल यूज़ हियर द रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल RADIAL, स्पेलिंग क्या है रेडियल की, ये है ना, इसने दिया ही नहीं। देन आई से ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, इसने पता नहीं क्यों नहीं दिया। और उसमें पहले ही हमारे पास होता है कि भाई क्या चाहते हो, सर्कल या आपको दो चीज़ होती हैं, तो सर्कल होता है या तो आपका ये होता है इलिप्स। और उसमें फिर बता रहा हूँ भाई रेड से लेके मेरे को चाहिए ब्लू, ठीक है। और उसके बाद ये चलाना है Background. हाँ, क्या ओ Background बैकग्राउंड मैंने difference. किया ही नहीं ना, बैकग्राउंड मैंने किया ही नहीं, राइट। बैकग्राउंड आपका बैकग्राउंड चाहिए जिसमें आपको रेडियल ग्रेडियंट चाहिए। तो नाउ यू सी इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक ए सर्कल एंड फिर ये बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, दिस कॉल्ड एज एन रेड। इसी तरह हमारे पे कॉनिक ग्रेडियंट होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मेरे पास अगर मुझको ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट चाहिए ऑन अ टेक्स्ट, मेरे को खूबसूरत टेक्स्ट बनाना है फॉर एग्जांपल, उसको कैसे बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा एक चीज़। जैसे हम फ्लैक्स पे गए और मेरे पास यहाँ पे H1 है ना, फ्लैक्स बॉक्स, मे बी आई राइट हियर डिजिटल मेगाट्रेंड्स, हाँ, डिजिटल कैपिटल में लिखेंगे DIGITAL, डिजिटल मेगाट्रेंड्स, डिजिटल मेगाट्रेंड्स, ठीक है ना। कमांड एस सेव इट, ये तो ऑलरेडी सेव होता है खुद ही। और स्टाइल 2 में हम H1 को पकड़ेंगे, कलर इसका जो भी मर्जी है क्योंकि मेरे को बाद में चाहिए नहीं है। इसका फॉन्ट साइज़ जो है ना मैं इंक्रीज़ करूँगा 150 फॉन्ट साइज, 150 पिक्सल रखूँगा मैं फॉन्ट साइज, ताकि बहुत बड़ा आ जाए। आगे डिजिटल मैग्नेट्रेंस, ओके। अब मैं इसको क्या करूँगा काम, मैं इसका एक चीज़ काम करूँगा। यहाँ पे क्या दिया मैंने, रेडियल ग्रेडियंट दिया मैंने, थोड़ा सा वाइटिश करेंगे, ये बंद करेंगे हम, वो वाला खोलेंगे, ये वाला खोलेंगे। ओके, अब हमारे पास इसमें क्या 180 डिग्री दिया है, 90 डिग्री पे देंगे हम ताकि हल्का ये दिखे, 90 डिग्री। ओके, 0.1
टू, क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड नहीं चाहिए अभी, मैं टेक्स्ट का दिखाना चाहता हूँ, ग्रेडियंट ऑन अ टेक्स्ट 0.3, हल्का सा पिंकिश आ रहा है अभी, ठीक है ना। इसको मैं कह सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। अब ये बीच में आ गया, ठीक। अब इसको इसके ऊपर हमें काम करना है, किसके ऊपर, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दूँ किसके ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ, जो मेरा H1. हाँ H1 है, कि उसके जो उसका ये है ना H1 का जो अंदर का टेक्स्ट है उसमें ग्रेडियंट आना चाहिए। यू गो, जो H1 का हमारे पास ये है उसके अंदर क्या आना चाहिए, ग्रेडियंट आना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं H1 को कह रहा हूँ कलर रेड है इसका, और मैंने इसका फॉन्ट साइज़ दिया 150, इसका फॉन्ट वेट भी देंगे, थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट होता है 100 to 900, है ना, ये याद रखना चाहिए, मतलब बोल्ड कितना बोल्ड चाहिए। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसको बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड अभी जो मैंने किया बैकग्राउंड, मैं बैकग्राउंड करूँगा, उसके बाद मैं कहूँगा भाई साहब बैकग्राउंड मेरे को चाहिए लीनियर ग्रेडियंट, इट विल बी एक्ट एज लाइक ए पिक्चर, ओके। 180 डिग्री पे कर लीजिए आप, 180 डिग्री कर लीजिए, और मेरे को चाहिए इसमें, और याद रखना चाहिए यहाँ पे हमने कहा था ना 2 कलर्स, ये ज़रूरी नहीं कि 2 कलर्स दे, आप 50 कलर दे दो, वो सारे कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। रेड, ब्लू, पिंक, जो भी, जैसे मैं इसको दूंगा 2-3 कलर्स, मैं कहूँगा रेड भी चाहिए मेरे को पिंक भी चाहिए, ठीक है, पिंक जी चाहिए मेरे को ग्रीन भी चाहिए, ओके। और कोई कलर याद है, येलो, तेज़ कलर दे दो, और मेरे को ब्लू भी चाहिए, ठीक है। ये सारे कलर मेरे को चाहिए इसमें लीनियर ग्रेडियंट, ये बैकग्राउंड हो गया। लेकिन अगर मैं देखूंगा अब ये बैकग्राउंड में आ जाएगा इसके, ये लीनियर ग्रेडियंट जो सारे कलर्स हैं ये इसके बैकग्राउंड में आ गया, लेकिन मुझे कहाँ चाहिए, Text. मुझे ये टेक्स्ट जो डी जो कलर दिख रहा है ना डी रेड, इसमें मेरे को ये ग्रेडियंट चाहिए, लीनियर ग्रेडियंट, ताकि मेरा टेक्स्ट खूबसूरत दिखे। और बात, मुझे बैकग्राउंड तो दिखाना ही नहीं है, जो बैकग्राउंड है वो मेरे को दिखाना ही नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा काम, पहले जो बैकग्राउंड है मैं कहूँगा इसमें बैकग्राउंड क्लिप आता है एक चीज़, बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। बैकग्राउंड क्लिप मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट, यानी कि बैकग्राउंड सिर्फ उतना ही रहे जितना टेक्स्ट है, यानी कि जो टेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड आपका था बाकी छुपा रहे, और जहाँ जहाँ टेक्स्ट है उसके पीछे बैकग्राउंड दिखे। यानी कि अभी जो आपका डी है उसके पीछे यकीनन बैकग्राउंड है, वो दिख रहा है, वो है, बाकी छुप गया। लेकिन अब मसला क्या है, अगर वो डी के पीछे, आई के पीछे, जी के पीछे जो बैकग्राउंड है वो है, यानी कि जी का ये क्लिप हो गया। यानी कि जैसे आपने आप काटते हो ना ब्लेड से, जी आपने काटा ब्लेड से, उस बैकग्राउंड का आपने काटा, वो है उधर, इस आई के पीछे वो लीनियर ग्रेडियंट है, लेकिन आगे क्या बैठा है इसका, रेड कलर, है ना। अब इंट्यूशन से बताओ मुझे क्या करना चाहिए, Opacity. एग्जैक्टली मुझे ये इसका रेड कलर हटाना चाहिए, है ना। सो वो कैसे कहूँगा, जो इसका कलर है, जो कलर है ना, जो ऊपर कलर बैठा है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाओ, उसको क्या बनाओ, बिंगो, आ गया ना, डिजिटल मैगाट्रॉन्स। ये जो पीछे जो बैकग्राउंड, तो हमने 2 चीज़ इसमें की, पहले मैंने कहा बैकग्राउंड को मैंने दिया लीनियर ग्रेडियंट जब दिया वो बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट आ गया सारा, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि जो ये बैकग्राउंड क्लिप करो आप, जो जितना टेक्स्ट है उतना क्लिप करो, यानी कि बैकग्राउंड में सिर्फ उतना रखो जहाँ जहाँ टेक्स्ट है, तो बिल्कुल ही काटेगा जहाँ जहाँ टेक्स्ट है, जैसे डी की शेप है उसके पीछे वाला बैकग्राउंड काटेगा, बाकी ख़त्म, बाकी बैकग्राउंड ख़त्म। लेकिन आगे अब आ रहा था इसका अपना कलर, तो उस कलर को मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो उससे क्या आ गया, ये खूबसूरत सा डिजिटल मैगाट्रॉन्स आ गया। इसमें आप और भी कर सकते हो, यू कैन चेंज लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें कलर चेंज कर सकते हो, इसमें डिग्रीज चेंज कर सकते हो, पैटर्न हो जाएंगे। अगर आपने 90 डिग्री कर दिया तो डिफरेंट पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जो जितने भी करें, और कलर करना चाहते हो, या ओपेसिटी यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, RGBA लगा सकते हो, एंड ऑल दैट, ठीक है। इतना काफ़ी है इसके लिए। आई विल कम बैक टू अवर ओन। ये समझ में आ गया पक्के से, ये क्या किया मैंने यहाँ पे, अच्छा जी। नाउ वी टॉक अबाउट द फ्लैक्स बॉक्स, वी टॉक अबाउट व्हाट, फ्लैक्स बॉक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, क्योंकि जितने भी हम प्रोजेक्ट सब फिर बाद में करेंगे वो सारे फ्लैक्स बॉक्स बेस्ड ही होंगे, और बाद में हम ग्रिड को पकड़ेंगे इन डिटेल। अब जो फ्लैक्स बॉक्स है
कि हमारे पास जो नॉर्मल फ्लो होता है, जो हमारे पास फ्लो है हमारे पेज का, उसमें तो या तो आपका ब्लॉक होगा, या तो आपका इनलाइन होगा, या आपका इनलाइन ब्लॉक होगा, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब जब आप फ्लेक्सबॉक्स इस्तेमाल करते हो, यू जस्ट थ्रो दीज थिंग्स आउट ऑफ द विंडो, सिंपल एज इट इज़। लाइक ऑल द बुक्स राइट लाइक दिस, दे राइट लाइक दिस, दैट थ्रो देम आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है इनकी जब फ्लेक्सबॉक्स आ गया। क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक नेविगेशन पेज बनाना है, जो यूज़ केस हम करेंगे कि मेरे पास नेविगेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इनका कंटेंट किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का बड़ा है, कहीं छोटा है, ये स्पेसिंग जो बीच में है, और ख़ुद कितना बड़ा ये बॉक्स होना चाहिए जो नेविगेशन में, ये जो नैव बार में ये बटन्स हैं, ये कितने बड़े होने चाहिए। क्या क्या अगर इसका टेक्स्ट ज़्यादा है तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बट ये कितना बड़ा होगा वो प्रोपोर्शनेट होने चाहिए ओवरऑल साइज़ के लिए। और जो यहाँ पे जो साइजिंग है, उनको कितने पिक्सल्स मुझे रखना है। और अब फिर दूसरी मुसीबत है कि आपने अब यही साइट खोली मोबाइल फ़ोन पे, तो वहाँ पे एज़ पर माई मोबाइल फ़ोन इसको स्क्यूज़ करना है, स्क्विश करना है, ताकि मेरे को ये जो चीज़ें हैं बराबर बराबर आए। तो प्रोपोर्शनैलिटी जो इसकी है वो बराबर आनी चाहिए, और उसके लिए जो है ना, यू हैव टू डू लॉट ऑफ मैथ, यू हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैथ वर्क ऑन दिस प्रोपोर्शनैलिटी। और इसमें बड़े बड़े उनका पानी निकल जाता है, क्योंकि इसमें जो है फिर भी कोई बड़ा कोई छोटा, इधर से इसको थोड़ी गैप ज़्यादा हो गई, इसको कम हो गई, फिर जब आपने दूसरे डिवाइसेस इस्तेमाल किए उसमें क्या करोगे आप। तो ये सारी परेशानी थी, ये 2017 में ख़त्म की फ्लेक्सबॉक्स ने, ठीक है। तो उसने एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे दी, जो कि आपकी साइट को जो कि विच वर्क्स ऑन द रेस्पॉन्सिवनेस ऑल्सो, इट वर्क्स ऑन द रेस्पॉन्सिवनेस, दैट it not only it tries to give the best size and best gaps in between, and it does tons more things, okay। इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ये करता है। तो इसीलिए जो है मैं कह रहा था आपको बिगिनिंग में कि हम हर एक चीज़ को अपना div देते हैं, ठीक है ना। तो बिकॉज द फ्लेक्स बॉक्स अप्लाइज ऑन द पेरेंट, you need to have a parent which is my div, then inside whatever you want to have, okay. And this div can be a flex box, means internally you are very flexible and you can move around things, and you can have those spaces and all those things automatically managed. You don't need to do any math work, there is no math, you don't need to do any maths, okay, not to do any maths, that you are free from that. Everything is automatically managed by the Flexbox. So the Flexbox is like a dream box for the programmer, for sure, right? So the moment you say it, and it's so simple to use that it is a few lines of code only, which you would use, few lines of code you will use to create a Flexbox. To illustrate this, let us do something here. Let me go to the Flex, and I will just comment it out, okay, right now. The digital megatrends, let me comment it out, and I will create here one container. I say dot container. When the moment I say dot container, it will create me the div with a class name container, right? Div class name container. Inside, I will create some 4, 5, 6 divs. I want to create 6 divs inside to illustrate how the working of the Flexbox. We are trying to do this. Later on, we'll do the nav bar and all on the use cases. We will design our nav bar using the Flexbox. Now here I will say div, okay, and I will say in the braces 1, then I say into 6. Now what I'm writing is a shorthand notation of this VS Code, that I'm trying to create 6 divs, everyone having a content as 1. Everyone has a content, so if something in the braces means content, and you give it a go, it creates me div 6 divs, and everyone has a content 1. Now I can change, this is 2, this is gonna be 3, this is gonna be 4, and now 5 and 6. So I got 6 divs. Now for this guy I will have this much only, and now I will style it up. And because if I see it, come on, Control S, save it,
Now if I give it a go and try to see, there will be nothing because I have my divs are this is like just 1 2 3 4 5 6 only here, right? I need to style the divs up so that I understand things. This h1 guy, I just do one thing, command this and close this. HTML background, okay, that's okay for me. These things I need, right? Okay. Now I need to do what? I need to style up my container, right? If I style up container, what should I do? I will have some, this container can take the whole height, but I don't want to take the whole height. I say dot container, container container, container, and I give it some height so that I understand what's going on. I will not give the whole page. Maybe I will do the 60% of the viewport height. Viewport is the total size of the screen, the height of the screen. So, and it is 60% of the height, and it won't be, it won't be visible unless I don't have a border. I will keep a border there. I will say the border and say 1 pixel and maybe solid and maybe red color. Now I got the border here, so I can see there will be some kind of a border there. This is the border. The red is not seen there. Maybe I use simply the white. I can use the white, okay, so that you can see properly. And maybe I got to say 3 pixels so that it is visible properly. So I got 3 pixel not visible again. Maybe I use the red color again, but 3 pixel. Now, okay, now I got the border. This is the border of this guy, and I want to these are the 1 2 3 4 5 6. These are 6 divs. Inside they had 1 2 3 4 5. Now let us give it a little more. This was my container, and I can give some height. I have given some height in it, but now I want to target the divs. Now I want to target what? Divs. If I want to target my div, all the divs, tell me using the combinator. We have seen the selectors, the combinators, that all the divs. I am saying like this. You tell me what should I write? I am saying all the siblings of this div, of the container, all the siblings of the container. How I write it? Yes. Dot container star. Dot container star. Then it will take everything. Nah, I don't want everything. You're right. If I say dot container star, that means everything. But I don't want everything. I say dot container. If I say space, what does it mean? It means All another of the element. links inside the container. Inside It you. means all the descendants. If I say space, that's a descendant selector. It means everybody. And कितना भी लेवल में क्यों ना हो, है ना? वो कितनी भी सब लेवल में क्यों ना हो. तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ greater than, sorry, then it means what? It means the direct child, right? But I'm saying space. Then I say div. It means all the divs of the container. If there are other things, if I say star, then it will take up then it will take everything. Container में h1 है, कुछ भी है तो वो सब पे आएगा. मैं उसकी नहीं बात नहीं कर रहा, मैं खाली divs की बात कर रहा हूँ. मैं पहले बैकग्राउंड कलर को दूंगा. बैकग्राउंड कलर, maybe I will give background color say maybe blue. सबका बैकग्राउंड कलर ब्लू आ जाएगा. तो अब इनका बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया सबका, है ना? ये 6 के 6 का ब्लू आ गया, लेकिन इनमें थोड़ी सी बॉर्डर हम देंगे. लेट मी गेट द बॉर्डर ताकि मुझे दिखे. बॉर्डर में दूंगा 1 पिक्सल, ओके, सॉलिड, मे बी आई से वाइट सिंपली, ओके. और इनको थोड़ी सी मार्जिन देंगे ताकि एक दूसरे से भागें, है ना? मार्जिन दूंगा से फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स ताकि एक दूसरे से भागे. अब ये भागे, ओके. Now you could see the div is taking up the whole space because they are the block. They have the display block. Because all the divs have a display block. So that means they will hog up the whole space. As you could see, they are taking up the whole space. They are taking whole space. Then 1, 2, 3, 4, 5. I could say here, text align center. ताकि text बीच में आ जाए. Text align center. और कलर वाइट दूंगा मैं क्योंकि ब्लू के अंदर वाइट दिखेगा अच्छे से, ओके. अब ये 1 2 3 4 5 6 बीच में आ गया.
क्योंकि मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर कहा और उनका कलर वाइट दे दिया। और लेकिन आप देखो डिव जो है ब्लॉक लेवल है, इसने इस जगह पकड़ी पूरी, दूसरे ने पूरी पकड़ी, तीसरे ने भी, चौथे ने, पांच ने, छठे ने भी, सब ने पकड़ी हाइट प्रॉपरली। मैं इनको पैडिंग वगैरह भी दे सकता हूँ, अगर मैंने मार्जिन दे दिया तो पैडिंग भी दे दो। लेट्स गिव इट पैडिंग ऑफ से 10 पिक्सल्स सो दैट ये थोड़ा सा दूर दिखे। और क्या कर सकते हैं इसमें, इसकी हाइट हम कर सकते हैं, इसकी हम ये कर सकते हैं, है ना, वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, है ना। इसका Yes. हाइट कर सकते हैं, इसकी विड्थ हम सेट कर सकते हैं ताकि हमें दिखे, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ कि मैं जो इसका कंटेनर है, ये जो डिव सारे हैं, ये सारे डिव है, ये किस में है, इस रेड बॉक्स में है ना। इस रेड बॉक्स का नाम क्या है, Container. कंटेनर, वेरी गुड, इसका नाम कंटेनर है। ये रेड बॉक्स ये बंदा है, कंटेनर है, जिसको मैंने रेड दिया था कलर। ध्यान से सोचें, आराम से देखें, कोई मसला ही नहीं है। ये जो रेड कलर मैंने दिया, सॉलिड रेड जो बॉर्डर मैंने इसको दे दिया, ये कंटेनर है, इसी के अंदर आपका डिव बैठा था। मैं अगर कंटेनर को बता रहा हूँ, कंटेनर को, किसको, कंटेनर को मैं कर रहा हूँ डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले क्या था, ब्लॉक, है ना। अगर मैं इसका डिस्प्ले Yes. रखूँगा फ्लैक्स, क्या रखूँगा, Flex. तो नाउ यू कुड सी they are arranged in this way, in a row way, okay, they are all gone here। अगर मैं इसका एक चीज़ करूँगा, इससे पहले कि मैं फ्लैक्स करूँ, मैं लेट मी फॉर अ टाइम बिंग सेट इट्स हाइट। मैं इसकी हाइट रखूँगा फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल, और इसकी विड्थ रखूँगा मैं 100 पिक्सल फॉर अ टाइम बिंग, सो आई कुड सी इट। नाउ आपके पास 100 पिक्सल के ये सारे बंदे हैं, एंड यू कुड सी देयर ओवरफ्लोइंग, नो प्रॉब्लम, बट ये ब्लॉक लेवल्स हैं। नाउ इफ आई डू वन थिंग, आई एम सेइंग हियर डिस्प्ले फ्लेक्स, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग, They are adjust. yes, they are going inside this box, and now you may say अगर मैं इनलाइन भी इसका डिस्प्ले कर दूंगा क्या फ़र्क पड़ेगी, अगर मैं इनलाइन करूंगा तो ये भी तो वही है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका डिस्प्ले करूंगा इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक फॉर एग्जांपल, सो फिर ये इसके साथ चला गया, है ना। या अगर मैं इन बॉक्सेस का डिस्प्ले करूंगा इनलाइन, तो फिर अगर मैं इसका डिस्प्ले इनलाइन नहीं करूंगा, इनलाइन ब्लॉक, मैं जो मेरे पास डिव्स हैं उनका मैं करूंगा डिस्प्ले inline block, what will happen, it will do the same thing, right, है ना। सो inline block भी तो यहाँ जगह पकड़ता है ना, इसने पकड़ी जगह फिर यहाँ से गया, बट inline blocks बस इतना ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो फ्लैक्स बॉक्स यहाँ से शुरू होगा, ये हमें याद रखना है। जो फ्लैक्स बॉक्स है वो यहाँ से, जो इसने ये सारी चीज़ें इसमें लाई, और इनलाइन जो आपका है वो इतना ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, वो स्पेसेस मेंटेन नहीं करेगा, साइज मेंटेन नहीं करेगा बॉक्सेस के, इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएगा। लेकिन जो आपका, जब मैं ये फिलहाल हटाता हूँ और मैं यहाँ पे इसका डिस्प्ले करता हूँ, क्या कंटेनर का मैं डिस्प्ले करता हूँ, आई विल यूज द कंटेनर डिस्प्ले एज व्हाट, फ्लैक्स। इसने भी यही काम किया, लेकिन पहली बात जो है, जो मेरा कंटेनर है, जब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ तो याद रखना चाहिए एक चीज़ कि इसमें दो एक्सिस बन जाती हैं। वी हैव फर्स्टली टू एक्सिस, एक हमारे पास मेन एक्सिस, ओके, और एक हमारे पास है क्रॉस एक्सिस। नॉट स्लीपिंग, एक हमारे पास है मेन एक्सिस और हमारे पास क्रॉस एक्सिस। जो ही आपने फ्लेक्स इस्तेमाल किया एज ए डिस्प्ले, ये दो एक्सिस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, ठीक है। एंड वी कैन, दीज आर कॉल्ड एज अ डायरेक्शंस। ये पहली बात कि डायरेक्शन आपकी जो है फ्लैक्स बॉक्स की, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपका मोबाइल नहीं है तो आपका डायरेक्शन रो है, यानी कि मेन एक्सिस जो आपकी है वो रो वाइज है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे इसने अरेंज किया इनको रो वाइज, इट हैज़ अरेंज्ड देम इन अ रो वाइज, नॉट वर्टिकली। लेकिन अगर मैं मोबाइल फ़ोन पे आ जाऊँगा
किस पे? इफ़ आई गो ऑन अ मोबाइल फ़ोन तो Cross उसका, हाँ, क्रॉस एक्सिस नहीं, उसका जो मेन एक्सिस होगा वो वर्टिकली होगा, और उसकी जो क्रॉस एक्सिस होगी वो रो वाइज होगी। यानी कि What? जो मोबाइल फ़ोन है उसका मेन एक्सिस आपका कॉलम है और क्रॉस एक्सिस आपका रो है। लेकिन जो आपका नॉर्मल डिवाइसेस हैं उसमें आपकी मेन एक्सिस ही रो है और क्रॉस एक्सिस आपका कॉलम है। ये आपको याद रखना है। तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपने अगर ऐसे रखा हुआ है, अपने मोबाइल फ़ोन में डालोगे वो आपको उल्टा दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा। तो इसलिए आपको इसमें डायरेक्शन सेट करनी चाहिए कि फ्लेक्स डायरेक्शन आपको बोलनी चाहिए पहले ही, ताकि वो दोनों में से सेम काम करें, यानी कि आपको फिर कन्फ्यूजन ना हो। यानी कि अगर डिस्प्ले फ्लेक्स कहा आपने, आप फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या देना चाहते हो? आई से फ्लेक्स, व्हाट आई डूइंग सना, फ्लेक्स डायरेक्शन, आई से फ्लेक्स डायरेक्शन। अगर मैं इसका रो रख रहा हूँ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि रो ही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रो ही है तो रो ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कॉलम करना चाहता हूँ then it will have a column direction. Now you see it will go on like a column, but you have seen it has also the grown up this thing. तो ये एक चीज़ हो गया। अगर मैं इसमें रो रखूँगा, एक दूसरा चीज़ है, मैं अगर मैं रो रिवर्स कर दूंगा, एक और चीज़ है रो रिवर्स कर देंगे, सो इट विल गो इन ए रिवर्स मोड। लेकिन ये इसने साइड में नहीं किया। एक तो क्या कि भाई आप इसको साइड में करो, राइट साइड इनको करो शिफ्ट, ये राइट साइड नहीं बल्कि रिवर्स हो गए। इसमें 6 5 4 3 2 1 ऐसे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया और फिर ये रिवर्स में आ गया। हमारा एक तरीका है कि अगर हम इसको हम राइट भी करना चाहते हैं, हम अगर इनको इस साइड रखना चाहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी अभी मैं दिखाऊंगा कैसे करेंगे हम। तो पहले मैंने आपसे दो चीज़ें हमने कही कि हमारे पास क्या होता है कि वी हैव टू एक्सेस, वी हैव व्हाट, टू एक्सेस। Towards एक हमारे पास जो है मेन एक्सेस है। इसमें इस वक्त कौन सी एक्सेस है? मेन, रो। mean. मेन है हमारे पास रो, बिकॉज रो, क्योंकि अभी तो मैं रो रिवर्स किया, अगर मैं रो लिखूंगा तो रो आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका, इसकी जो वर्टिकल एक्सिस जो है दैट इज राइट नाउ व्हाट, दैट्स द क्रॉस एक्सिस, वो हमारी मेन नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी इसका है जस्टिफाई कंटेंट करूँगा, क्या करूँगा? जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट में मैं इसको कह रहा हूँ सेंटर, क्या कह रहा हूँ? सेंटर। तो आप देख रहे हैं सेंटर पे आ रहे हैं, लेकिन ये काम कर रहा है ऑन द मेन एक्सिस। दिस वर्क्स ऑन व्हाट? दिस वर्क्स ऑन मेन एक्सिस, याद रखना है, दिस वर्क्स ऑन मेन एक्सिस, इट वर्क्स ऑन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका यही चीज़ मोबाइल फ़ोन में चल रहा है तो वो जस्टिफाई कंटेंट रो पे नहीं करेगा, वो किस पे करेगा? ये इसको यहाँ पे बीच में लाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो कौन है? कॉलम। मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे मेन एक्सिस आपका रो है, इसलिए इसने रो के बीच में लाया इसको। लेकिन आपका मोबाइल फ़ोन में आपका मेन एक्सिस आपका कॉलम है, तो वो कॉलम के बीच में लाएगा, यहाँ पे कहीं पे इसको बीच में लाएगा, या इस जगह पे, वहाँ पे। लेकिन अगर आपने एक्सप्रेसिवली कहा है कि भाई साहब मेरी डायरेक्शन जो है वो रो होने वाली है, तो चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, तो चाहे आपका कोई चीज़ हो, अब आपका फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही रहेगा। और जब आपने कहा कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इट विल गेट इट इनटू दिस सेंटर, ठीक है ना। एक और चीज़ होता है, अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट को बोलता, इसके बदले में बोलता फ्लेक्स एंड, नाउ you see it has gone to the end, it is not reverse, it's not like a row reverse, it's going to the end because वन यहाँ से शुरू है, ठीक है। अगर मैं कहता फ्लेक्स स्टार्ट, है ना, फ्लेक्स स्टार्ट, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है, जो था पहले ही, जो बाय डिफ़ॉल्ट है बाय स्टार्ट वो वही है, बाय एंड हो गया इधर से ले रहा। और अगर आपने यहाँ पे रो लिखा या रो रिवर्स लिखा तो फिर वो रिवर्स करेगा। फिलहाल मैं इसको कहूँगा सेंटर में आ जाता हूँ, ओके। एक और चीज़ है जो कि, तो जस्टिफाई कंटेंट किस पे काम किया इसने? इट वर्क्स ऑन मेन एक्सिस, है ना। Mean axis. और दूसरा चीज़ है कि अगर मैं इसको कहूँगा, एक होता है जस्टिफाई कंटेंट, एक और होता है अलाइन आइटम, हाँ, एक होता है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम जो है, अगर मैं इसको भी सेंटर कहूँगा, ये करता है काम ऑन द क्रॉस एक्सिस, ठीक है। यानी कि अब अगर मैं इसको लाऊंगा, इसने क्रॉस एक्सिस पे काम किया, तो देखो इसने सेंटर में इसको लाया,
इसने लाया लेकिन वर्टिकल सेंटर में अब लाया। अभी बिल्कुल जो जितना भी आपका कंटेनर का साइज़ है ये बिल्कुल बीच में आ गया। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि this flex box is a whole functionality. It has all the methods where we can use them and we can do tremendous amount of things जो कि हम करने जा रहे हैं। तो फिलहाल मैंने कहा अलाइन आइटम अब क्या करो, सेंटर करो। अब इसमें भी आप कह सकते हो कि भाई साहब सेंटर नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को फ्लेक्स एंड चाहिए, तो वो एंड पे आ जाएगा। अगर आप कहोगे नहीं फ्लेक्स स्टार्ट पे चाहिए, ठीक है, तो वो स्टार्ट पे आ जाएगा। तो ये आप सेंटर, स्टार्ट या बीच में करना चाहते हो वो आप अलाइन आइटम्स पे करोगे। सो इफ आई से राइट नाउ द सेंटर, सो व्हाट डज इट मीन अलाइन आइटम्स? इट वर्क्स ऑन विच एक्सिस? Align cross axis. इट वर्क्स ऑन द क्रॉस Cross. एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, कमांड सी, कमांड वी, इट वर्क्स ऑन क्रॉस एक्सिस। ठीक है जी, ओके। मैंने क्या किया, जस्टिफाई इसको किया मैंने, ये किया। एक और चीज़ होता है कि अब ये हो गया, बीच में आ गया बाज़ाबिता। अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दिखाऊंगा बिकॉज इट्स गेटिंग लेट नाउ, लेकिन एक और प्रॉपर्टी में दिखाऊंगा, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे टुमारो। मैंने जो है ये जो है मेरे पास 3 और मैं ऐड कर दूँगा इसमें। Let me put up these guys and control option down arrow. This is my 7, this is my 8, this is my 9 and this is my 10. Now you see they're growing up. Okay, अगर इनका थोड़ा सा साइज हम करेंगे increase boxes का, let me get it say 200 pixels, 200 pixels by 200 pixels. Now you see, लेकिन आप एक चीज़ में देख रहे हो कि हाइट 200 हो गई लेकिन विड्थ 200 नहीं होगी, क्योंकि अगर 200 में 200 होता है स्क्वायर दिखता है, ये तो स्क्वायर दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसने इसको स्क्यूज किया है, इसमें इट हैज स्क्यूज इट इनसाइड दिस बॉक्स। सो जितना हम ऐड करते जाएंगे इट इज़ ट्राइंग इज बेस्ट टू साइज इट अप इन द बॉक्स। ठीक है, इट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू साइज अप इन द, कहाँ गया हमारा ये, अच्छा इसी में है। इट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू गिव परफेक्ट साइज बिटवीन दीज गाइज। और इसमें एक चीज़ है कि अगर हम गैप कहेंगे कि भाई साहब आपने फ्लैक्स तो कर दिया लेकिन गैप आप दो बीच में से इनको 10 पिक्सल्स की। ठीक है, नाउ यू सी द गैप इज गोइंग मोर। लेकिन आप देखो कि ये कोशिश कर रहा है कि बेस्ट साइज देने की। ठीक है ना, फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास अब किसी में अगर टेक्स्ट ज़्यादा है, अगर किसी का टेक्स्ट ज़्यादा है फॉर एग्ज़ाम्पल, इट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू डू व्हाट, टू गिव जो कंटेंट है उसके हिसाब से साइज़ देने की और बीच में जो गैप्स हैं परफेक्ट रखने की। हमारे पास और भी इसमें मेथड्स हैं, वी विल लर्न देम, बट इट्स गेटिंग लेट, 10:30 नाउ। We will continue this class tomorrow and we will do, there are tons of things which we can do with the Flexbox. That will continue tomorrow, okay? So फिलहाल हमने एक चीज़ सीखा कि the moment you say display is flex, you will get 2 axes. One is, हाँ जी, Main axis and X and cross. Y. main axis and Cross axis. cross axis. लेकिन मोबाइल फ़ोन में मेन एक्सिस आपकी कॉलम वाइज है और यहाँ आपकी मेन एक्सिस कौन है, Row. रो वाइज है। ठीक है ना, एक चीज़ में और यहाँ पे करेंगे हम, बिफोर आई गो, is my screen visible? Yes, sir. Now I am decreasing my screen size. जो इनलाइन आपका ब्लॉग था ना वो नहीं करता, लेकिन इसमें कुछ लिमिट है। ओके, जो मिन विड्थ है और जिसे हम बोलते हैं मिन विड्थ एंड मिन हाइट एंड ऑल, लेकिन आप देखो इट इज़ ट्राइंग टू स्क्विश इट, इज़ ट्राइंग टू व्हाट। आप देखो ये मैं जब स्क्रीन साइज़ कम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल के ऊपर आ रहा हूँ, मैंने भी आईपैड के ऊपर आ रहा हूँ, उसके बाद मैं मोबाइल के ऊपर आ रहा हूँ, इट इज़ स्क्यूजिंग, इट इज़ ट्राइंग टू स्क्यूज
ठीक है ना, जितना इसको हो सकता है उतना स्क्यूज करेगा, लेकिन 10 अब अगर पहुंचेगा नहीं इसमें, इसके अंदर, देन इट हैज़ नो ऑप्शन बट टू गो आउट, राइट। अगर मैं इसके बाद और भी करूँगा इसको, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये स्क्यूज कर रहा है, स्क्यूज कर रहा है, लेकिन अब 10 जा रहा है बाहर। अब 10 कहाँ जा रहा है? बाहर, क्योंकि अब इसमें चारा नहीं है, क्योंकि इससे कम नहीं कर सकता, क्योंकि 10 यहाँ से है, इट कांट स्क्यूज इट मोर, नाउ इट इज़ गोइंग आउट। अब हम चाहते हैं कि ना, क्योंकि इसका जो एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है इसका नो रैप, नो रैप में ये बाहर जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका रैप हम करें ताकि ये बाहर ना जाए, बल्कि ये पाइल अप हो यहाँ पे, ठीक है। वी विल डू इट टुमारो। लेकिन एक बात आप देख रहे हो कि हाउ मच इट इज़ ट्राइंग टू डू ऑफ इट्स ओन, इट्स ट्राइंग ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क, खुद ही कर रहा है काम, है ना। इट्स ट्राइंग टू स्क्यूज एज मच एज पॉसिबल। एंड इसमें जो हम कल स्पेसिंग वगैरह भी करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हाउ मच कंफर्ट इट गिव्स टू द प्रोग्रामर, ठीक है ना। और इसमें जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी ला रहा है आपके साथ साथ, यानी कि यू डोंट हैव टू टू मच वर्क, जो कि पहले आपका जो 2017 से पहले था ना, एक तेल निकलता था सिर्फ इनमें लेआउट करने में, ठीक है ना, उनकी साइजिंग, उनकी प्रोपोर्शनल्स देने में एक ज़बरदस्त दिमाग लगता था, मैथ वर्क होती थी, वो सारा का सारा अब आपके पास, यू डोंट नीड टू डू दैट, ओके। सो विल कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो, सो सी यू गाइज इन टुमारोज क्लास। अल्लाह सर हाफिज़। यस, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम से। सर मैंने आपको कोड भेजा था ना, मैं उसमें ड्यू में हाइट देना चाहती थी, लेकिन उसमें वो मतलब उसको मैं दे नहीं पा रही थी हाइट। मैंने भी देखा नहीं वो, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं आया अभी, बट आई विल ट्राई टू सी दैट टुमारो, ओके। आपने ड्यू सर को, ड्यू हाइट ड्यू आपके देता पास है, और आप क्या करना चाह रहे हो, उसको हाइट देना चाह रहे हो, हाँ, और उसको हाइट नहीं लग रही है। उसको हाइट लग रही है, लेकिन उसमें फिर स्क्रॉल बार आता है, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो एक ही पेज पे रहे खाली। नहीं, जब आप इसको पेज की ज़्यादा अगर आपने हाइट दी तो उसको पे क्या चाह रहा है, वो तो बाहर गया, पेज के बाहर गया, अगर आपने बहुत ज़्यादा हाइट दी। अगर मैं कम भी देती हूँ ना फिर भी आता है, और अगर मार्जिन वार्जिन सारा करके देखती हूँ ना फिर भी स्क्रॉल बार आता है। लेट मी सी दैट कोड टुमारो, ओके, इंशाल्लाह। ओके ओके, आप लाइन नंबर उसको बता देना मुझे कहाँ पे इशू है, हम। ओके सर। ओके, ओके देन सी या। अस्सलाम।